Hello everyone. Today we are going to complete our part 2 of microorganisms friend or foe. I hope you are doing fine. So let's start with the part 2. We did some points in the previous class regarding microorganism. We studied the types of microorganism and let's recapitulate whatever we studied. The first is microorganism and its type. What are its type? Bacteria. Bacteria, you know, it is a type of small microorganism. We studied its shapes and what are the diseases that can be caused by bacteria. Where does it can live or survive, in what conditions. Then we studied fungi and its type. Where does it survive? Is it non-green or green? Then algae, these are green in color and it is the only green microorganism. Then next, protozoa. We also studied different shapes of protozoa, what are the diseases caused by protozoa, and the last one is virus. Further, we studied about friendly microorganism, how the nitrogen gas is fixed by friendly microorganism and how curd is formed and so on. Then we started harmful microorganism. In harmful microorganism, we studied diseases caused in humans. What are the various kinds of diseases? Like cholera, TB, all these diseases, flu, all these are caused by microorganism. The next thing which we are going to study is the major disease that was left is the disease caused by the microorganism protozoa. So you must have seen this picture. What is this? Can you guess? This is mosquito. ये एक मस्कीटो है जो आपके घरों में मिलता है, ठीक है. अब आप देख रहे हो उसका नाम क्या है, AEDES, एडिस मस्कीटो. It is responsible for majorly dengue and there is one more anopheles mosquito. It is responsible for malaria. You can see white patches on its legs. देखो इसके लेग्स पे वाइट पैचेस हैं, डिवाइडर्स हैं. वो क्या होते हैं? वो इसकी स्पेशलिटी होती है इसके बॉडी के स्ट्रक्चर की, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज अ हाउस फ्लाई. वी हैव सीन इट in our houses, on the roads, wherever open food is there, ठीक है. वहाँ ये मिलती है, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे हमने देखा है गार्बेज के आसपास ऐसी मक्खी. इसको हम हिंदी में मक्खी कहते हैं. So now we are going to study about malaria and its causing agent is protozoa, and protozoa is a type of microorganism. So you know that how does this housefly is responsible for the disease caused. हाउसफ्लाई क्या करती है कि गार्बेज पे बैठती है और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, ठीक है. वहाँ से अपनी ये जो आप देख रहे हैं इसकी लेग्स हैं पतली पतली, 1 2 3 5 लेग्स हैं, ठीक है. इस पे जर्म्स कैरी करती है और फिर ये उड़ के जहाँ पे भी बैठेगी, सपोज़ कोई वेंडर है जो कट वेजिटेबल्स बेच रहा है या कट फ्रूट्स बेच रहा है, वहाँ बैठेगी. या आप घर में कुछ खा रहे हैं तो आपके घरों में अगर आती है तो उस पर बैठेगी, तो उस पर क्या करेगी, अपने जर्म्स सारे स्प्रेड कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी. तो इस तरह आपको कंज्यूम करेंगे और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है. एंड दिस सेकेंड इज़ व्हाट? मलेरिया और डेंगू. मैंने आपको बताया मस्कीटो. तो मलेरिया किससे होता है? एनोफिल से. यू कैन सी दिस. मलेरिया किससे होता है? एनोफिल से. इट इज़ द पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया. एंड एडीज से क्या होता है? डेंगू होता है या फिर चिकनगुनिया और जीका, ठीक है. तो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है इनसे बचने का? ये तरीके दिए हुए हैं कि कोई भी ऐसा कुछ मत करो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो. जैसे कूलर्स को हमेशा, जैसे कूलर्स का यूज़ ख़त्म होता है सर्दियों में, तो आप ड्राई करके रखो, उसमें पानी इकट्ठा मत होने दो. कोई भी पॉट होल खुला ना हो आपकी लेन में. कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पे पानी कलेक्ट हो, कि ब्रीडिंग ग्राउंड इनका क्या होता है? पानी, ठीक है. तो और मस्कीटो से बचने के लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर सकते हो. देयर आर मेनी रेपेलेंट्स इन द मार्केट. देन यू कैन यूज़ अ मस्कीटो नेट. ओके, these are all the measures. Now next we have to study the microorganisms that cause diseases in animals. अब हमने humans के बारे में तो पढ़ लिया.
अब हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। एक पहला तो डिजीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एंथ्रैक्स, जो कि किस में होता है, कैटल में, गाय में ये डिजीज़ होता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। दिस इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है, किस में होता है, ये भी कैटल में होता है, गाय में होता है, वो वायरस से कॉज होता है। और एक ये बर्ड फ्लू होता है, फ्लू तो ऑब्वियसली वायरस से कॉज होता है। स्वाइन फ्लू आपको पता है पिग्स में होता है, स्वाइन मीन्स पिग्स। तो इनके क्या होता है, फीट एंड माउथ डिजीज़ में क्या होता है, इस बारी स्वेलिंग हो जाती है फीट पे, माउथ पे, कैटल के उस पर धब्बे आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, गलने लगती है स्किन। ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ हैं जो आपके एनिमल्स में होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हैन है, इसको भी फ्लू हो सकता है, पोल्ट्री को इफ़ेक्ट करता है। और ये हमारी है कैटल, जिसके मुंह पे देखो आप, ये ग्रीन पोर्शन देख रहे होंगे। ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है इसके मुंह पे, उसके आई के पास, ये सब क्या है, ये सब डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी डिजीज़ कॉज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में डिजीज़ क्या होता है। अब जैसे आपको पता है, ठीक है, वो क्या पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। आपने देखा होगा लीव्स गल रहे होते हैं, कई बार ड्रूप करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है। वो सब क्या होता है, वो सब डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि कॉज होते हैं प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल रस्ट ऑफ वीट, देखो यहाँ एक डिजीज़ लिखा है विच इज़ कॉज बाय अ फंगस। अब वीट पे क्या होती है, रस्ट ऑफ वीट, ये डिजीज़ का नाम है। फंगस चिपक जाती है और वो वीट के प्लांट को खाने लगती है। ठीक है। ये होता है येलो वेन मोज़ैक, जैसे आप इसमें देख रहे हो। ये क्या है, जो आपका प्लांट होगा, लेडी फिंगर मतलब भिंडी का पौधा, उसके लीव्स पे ऐसे येलो स्पॉटिंग हो जाएगी। ठीक है। लीफ कर्ल डिजीज़ होता है, ये किस में होता है, बीन में, बीन मतलब फली, और मटर में होता है, सोयाबीन में होता है, कॉटन में होता है। ठीक है। ये सब डिजीज़ किससे होते हैं, वायरस से। तो डिजीज़ बेसिकली क्या करते हैं, और ये भी एक टाइप का डिजीज़ है जो आपके वीट प्लांट में होता है। ठीक है। ये किस में होता है, वीट प्लांट में। ये सब डिजीज़ क्या करते हैं, आपके क्रॉप्स को ख़त्म करते हैं, और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो जो भी लाइक पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वीडिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, ये डिजीज़ ख़त्म हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी फूड पॉइजनिंग। अब हमें पता है गंदा खाना खाने से या इन्फेक्टेड खाना खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग बेसिकली होता है वो खाना जो स्पॉइल्ड हो चुका है, मतलब उसका टेक्सचर फ़र्क हो चुका है, क्या हो चुका है, उसके कलर में फ़र्क आ चुका है। ठीक है। उसका कलर ख़राब हो चुका है, उसमें स्मेल आ चुकी है। ठीक है। उसके अंदर क्या आ चुकी है, स्मेल आ चुकी है, जिस वजह से अब वो खाने लायक नहीं बचा, और उसमें केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि खाना ख़राब हो रहा है। फिज़िकली हम उसके कलर से और उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, हमारा पेट ख़राब हो सकता है। इट कैन इवन कॉज अल्सर्स इन स्टमक एंड माउथ, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू वेरी सीवियर डिजीज़ेस। ओके। सो सिम्टम्स क्या हैं अब आपके फूड पॉइजनिंग के। फर्स्ट है हेडेक, फिर फीवर, वॉमिटिंग और डायरिया। हेडेक मतलब सर दर्द होना, फिर फीवर होना, वॉमिटिंग होना और डायरिया होना। क्लियर। जैसे आप ये बच्चा देख रहे हो, इसने कुछ गलत खा लिया जिस वजह से इसको क्या हो रहा है, वॉमिट टाइप सेंसेशंस हो रही हैं, इसका पेट ख़राब हो सकता है, और इसे बुखार भी हो सकता है, और सर में दर्द भी हो सकता है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ डिज़ीज़। तो हमें ऐसा गंदा बहुत टाइम तक पड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना चाहिए। और स्पेशली जब हम बाहर से खाते हैं, तो बाहर वाले जो होटल्स या फिर वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट साइड, वो हमें नहीं पता कितना पुराना खाना हमें फ्राई करके या फिर बेक करके या जो भी करके उसे प्रिजर्व किया हुआ ऐसा खाना हमें खिला रहे हैं। ठीक है। बट हाउ मेनी डेज इट इज़ ओल्ड वी डू नॉट नो। दैट्स वाई at home we know that we are eating fresh food, and we should eat freshly prepared food or not food that is kept in the fridge for longer days, मतलब 3 4 5 दिन, हफ्ता अगर हो गया उस खाने को, then it is not fit for human consumption.
सो टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग वी नीड टू प्रिजर्व फूड, ठीक है। प्रिजर्वेशन मतलब उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे। न्यूट्रिशनल मतलब उसके अंदर स्मेल ना आए, ठीक है। स्मेल आ गई तो वो फूड ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स ये सब इंटैक्ट रहे, ठीक है, और उसका अपीयरेंस और फ्लेवर ख़राब ना हो। तो फूड प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब फूड हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा पैकेज्ड बॉटल्स आती हैं टोमेटो केचप की, पिकल की, जैम्स की। तो वो कैसे इतने टाइम तक ठीक रहती हैं? वो क्या हो रहती हैं? क्योंकि वो प्रिजर्व की गई होती हैं। जैसे आप चिप्स खाते हो, अंदर से बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, बिल्कुल उसका फ्लेवर इंटैक्ट होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। बटर खाते हो, वो कैसे ठीक रहता है? वो तो पैकेज प्रोडक्ट है, शॉप्स पे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, पर वो ठीक है क्योंकि उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे हम, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज, मतलब वो ख़राब ना हो, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो, उसकी अपीयरेंस मतलब वो देखने में भी ठीक लगे और उसका कलर इंटैक्ट रहे, उसमें कोई स्मेल ना हो, ठीक है। दिस इज़ फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Next, you can see here it is a bottle of pickle. How is it intact? It is intact because we have preserved it using preservatives. Next, you can see these are dry fruits. ठीक है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये सब, ये अखरोट है पीछे है, तो ये सब कैसे इंटैक्ट हैं? ये आपने कैंडीज़ खाई होंगी, ये कैसे इंटैक्ट रहती हैं? ड्यू टू प्रिजर्वेशन। देन दिस इज़ जेली, ठीक है, जैम्स, all these are being preserved due to food preservation techniques. And lastly, this is milk, cans, bottle और packets, ठीक है। ये बॉटल है मिल्क की, ये वाली मिल्क की बॉटल है, ये पैकेट है और ये कार्टन है। ये सारे दूध कैसे प्रिजर्व रहता है? दूध जब आप डेट देखते हो बेस्ट बिफोर पैकिंग, तो वो उतने डेट से पहले वो ठीक रहता है। क्यों ठीक रहता है? क्योंकि वो प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, जो सब कॉमन टेक्निक्स हैं। सबसे पहला तो प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो किस में डाले जाते हैं? फूड में डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहला मेथड है, हम कॉमन सॉल्ट मतलब नमक डाल के नॉन वेज आइटम प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक फ़िश एंड नॉन वेज आइटम्स प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक फ़िश एंड मीट। उससे क्या होगा? उसमें पानी की कंटेंट नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। सो सॉल्ट इज़ बेसिकली यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, मीट एंड फिश, ओके। नेक्स्ट इज़ शुगर एज प्रिजर्वेटिव। जैम्स में, स्क्वैशेस में, जैसे ऑरेंज स्क्वैश आती है, रेड स्क्वैश आती है, रोज स्क्वैश आती है, ये सब क्या करते हैं? ये भी मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल में रखते हैं, जिस वजह से वो ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। ऑयल एंड विनेगर किस में यूज़ होते हैं? आपके कैंस आते हैं, लाइक पिकल के ऑयल उसमें यूज़ होता है, विनेगर डलता है, सिरका होता है विनेगर। वो भी क्या करता है? वो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, फूड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो दो सॉल्ट है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये दो सॉल्ट्स हैं जो हम पिकल में डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक। See this. What is this? This is basically pasteurization. This is what? Pasteurization. It is a technique that is used to preserve the milk. इसमें टेक्निक में क्या करते हैं हम? इस टेक्निक में हम दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, मतलब 100 डिग्री से कम 70 डिग्री तक हम उसे हीट करते हैं, जैसे 1 मिनट और 30 सेकेंड्स के लिए, और हीट एक्सचेंजर में पास करके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं, ठीक है। एक्सेसिव हीटिंग और एक्सेसिव कूलिंग में बैक्टीरिया मर जाता है। उसके बाद हम उसे प्रिजर्व कर देते हैं और हम पैकेट्स या कार्टन में पैक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो स्पॉइल नहीं होता, कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रहता है, और वो हमें पैकेट्स में मिलता है, डेयरी पे मिलता है, लाइक अमूल, मदर डेयरी, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज दैट सेल सच
milk and we drink that milk and it is fit for consumption. So this method is called pasteurization. It was discovered by Louis Pasteur. He was a scientist, and on his name, to give him honor, we have kept the name of the technique as pasteurization. Okay. नेक्स्ट इज़ पैकिंग एंड कैनिंग. कैनिंग इज़ बेसिकली आपने देखा होगा कोक या फिर जो भी आपकी एरेटेड ड्रिंक्स हैं वो आपके कैन्स में आती हैं, ठीक है. उसके अंदर बहुत सारी एक्सेसिव CO2 डाली जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहे. देन आपका अभी हमने डिस्कस किया ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं. कैंडीज़ आती हैं, गोलियाँ आती हैं जैसे अनारदाना गोली, हाजमोला, ये सब जो पैकेट्स में चीज़ें आती हैं, जैम्स आती है, ठीक है. ये सब पैकेट में जो चीज़ें आती हैं प्रिजर्व करी जाती हैं यूजिंग सच प्रिजर्वेटिव. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू स्टडी इन फूड प्रिजर्वेशन. सो द लास्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना. नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर से बांध के उसे हमारे अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करना. क्योंकि डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, उसको हमें ऐसे फॉर्म में रखना है ताकि वो हमारे लिए काम आए. तो नाइट्रोजन इज़ व्हाट? नाइट्रोजन आपको पता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N इन एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंट होता है नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में 78% होता है, ठीक है. मतलब हमारी बॉडी में नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होता है. हमारी बॉडी में एक एलिमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है कुछ परसेंटेज में और बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है. और एटमॉस्फेयर में वो N2 की फॉर्म में होता है. N2 इज़ अ गैस, ठीक है. N2 इज़ अ गैस एंड एलिमेंट फॉर्म में हम N लिखेंगे. और ये ऐसे ही यूज़ नहीं हो सकता लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में. तो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है. फिक्सेशन की फॉर्म में 3 कैटेगरीज में अवेलेबल होता है, NO3, NO2 और NH4. सबसे पहली फॉर्म N2 से ही NH4 में आता है, फिर ये कन्वर्ट होता है NO3 में या फिर NO2 में, ठीक है. So basically what is nitrogen fixation? It is the conversion of free nitrogen into useful compounds. Nitrogen fixation is the first step. जब तक हम चीज़ को पकड़ेंगे नहीं हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन. और ये कौन करता है? ये बैक्टीरिया राइजोबियम करता है. ये एक बैक्टीरिया है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में. आप ये देख रहे हैं यहाँ पे गांठें सी बनी हुई हैं यहाँ पे, ये देखो. ये दीज आर बेसिकली स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर नाइट्रोजन आके इकट्ठी हो जाती है. बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है रूट के अंदर रहने की और वो क्या करता है, जगह लेने के बदले नाइट्रोजन सारी इकट्ठी करके यहाँ ले आता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है. यहाँ से क्या जाती है, नाइट्रोजन सारी जाती है, ठीक है. तो इस होल प्रोसेस में जिसमें नाइट्रोजन इकट्ठी होती है, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज होती है, ठीक है. उसके बाद कंपाउंड में चेंज होने के बाद प्लांट यूटिलाइज करते हैं, फिर एनिमल, फिर ह्यूमन बीइंग्स. उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो वो सॉइल में मिल जाते हैं. सॉइल से फिर नाइट्रोजन क्या होती है, दोबारा से फिक्स होती है, मतलब चेंज होती है कंपाउंड्स में. कुछ वापस प्लांट में चली जाती है, कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको वापस गैस में चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो इस तरह अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सेम रहता है, दैट इज़ 78%, ठीक है. So now let's see the cycle. So the first step of cycle is when the atmospheric nitrogen is fixed by bacteria, that is rhizobium. और blue green algae भी एक algae होते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल होता है उनमें, तो क्या करते हैं वो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन, ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है आपका फिक्स होने के बाद इट चेंजेस इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स. पहला NH4 बनता है, अमोनियम, ठीक है. नाइट्रोजनियस कंपाउंड बनने के बाद वो सॉइल में होता है. अब सॉइल क्या करेगा? थर्ड स्टेप, सॉइल में प्लांट्स लगे हैं तो वो ले लेंगे, प्लांट्स को एनिमल खाएंगे. फोर्थ स्टेप वो खा लेंगे, ठीक है. उनके अंदर भी नाइट्रोजन चला गया. अब दोनों 3 एंड 4 स्टेप से एक स्टेप निकलेगा, दैट इज़ 5. प्लांट्स मरेंगे या एनिमल्स मरेंगे तो वापस क्या होगा, नाइट्रोजन सॉइल में जाएगा, ठीक है. कुछ नाइट्रोजन क्या होगा, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन्हें वापस किस में चेंज कर देंगे, गैसेस फॉर्म में, ठीक है. और बाकी नाइट्रोजन क्या होगा आपका, कुछ प्लांट्स दोबारा भी ले लेते हैं, ठीक है, वो दोबारा फिक्स हो जाते हैं. अब फिक्सेशन आपका एल्गी और बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ लाइटनिंग भी फिक्स कर देती है. लाइटनिंग बेसिकली नाइट्रोजन को कैप्चर करके डायरेक्टली सॉइल में फेंक देती है, ठीक है.
और सॉइल में आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्लियर। अब NH4 से जब ये स्टेप होता है तो NO3 या फिर NO2 बनता है। अब ये दोनों जो कंपाउंड है ये इजीली प्लांट्स भी ले सकते हैं और एनिमल्स भी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज ऑल थ्योरी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ से द साइकिल इन विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज पास्ड इनटू लाइफ फॉर्म is called then released by atmosphere is called nitrogen cycle. ठीक है। Step 1, it is converted into nitrogenous compounds with the help of bacteria. लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पीज हो गया, मटर, फली हो गई या दाल भी हो सकती है। फिर ये अमोनियम किस में चेंज होती है, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रेट डायरेक्टली यूज़ हो जाता है प्लांट से, फिर ये प्लांट एनिमल खाते हैं फूड चेन के द्वारा, तो एनिमल्स में जाता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है, फिर प्लांट्स एनिमल जब मरते हैं तो वापस चला जाता है सॉइल में, तो वो कुछ यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए, या फिर वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन, दूसरा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जब नाइट्रोजन कंपाउंड वापस N2 में चेंज होके एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड. Now you have to do the questions that are left in the exercise given on page number 43. 43 पे जो questions दिए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं A पार्ट के, दैट इज़ 4 and 5. B पार्ट के 2 बचे हैं, C पार्ट के 3 बचे हैं। ये सब आपको कॉपी में करनी है। कौन सी कॉपी में करनी है, बायो कॉपी में, फेयर कॉपी, बायो फेयर कॉपी में। ठीक है। उसके बाद पेज 44 पे D में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के 2 क्वेश्चन बचे थे, अब ये करेंगे। और बायोफेयर कॉपी में वहीं से करना है जहाँ पिछले क्वेश्चंस एंड किए थे, उसके बाद नए फ्रेश पेज से शुरू कर देना। देन आपको बायोलॉजी फेयर कॉपी में करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ई पार्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 and 3 and 4 and 5. ओके, now your chapter is finished. So since you have to do the questions and one activity you also have to do, that I will send in WhatsApp related to this whole chapter microorganism. Thank you so much. Do your work and stay safe and healthy. Bye.